So hi everyone. So may I know who all are having their first lecture today? Please raise your hand, whoever is there. Okay. So who all are having their first lecture? Can you all introduce yourself, please? We'll start with Shubham Mahajan. Hello. Yeah, your voice is very low. So now fine. Hello. No, no, still it's very low. Hello. Now fine. Yeah, you are audible, but voice is very low actually. Is it for me only or is it for everyone? Can anyone confirm? Yeah, So sure. Now you can speak, I guess. Now it's fine. hello. Yeah, Saurabh. Yes, sir. Correct. Yeah, please give your introduction. Actually, my name is Saurabh Pawar. I have completed my 11 12 from Nauroji Wade College. Actually, sir, I am a BSc Petrol student. Okay. Petrotech. I have completed my Petrotech and a BSc. Totally from non-IT background. Can I do this course or in Salesforce? Can I make the career? Yes, yes, you can. Why not? Anyone can make a career in the IT field. Okay. So Actually, because that thing is, yeah, the correct. main thing is I have no idea of coding and all that things you can say. It's totally fresh. Yeah, Fresh. yeah. So in this course, we'll go from scratch only. Okay. So in this course, what we will be doing is, okay. So in Salesforce, there are two area of your interest. Okay, if I'm not wrong. Means there are two areas of your interest. Like one is the admin and another one is the development. Okay. So, and in admin part, there is not coding required. No coding is there. Okay. And in the because in admin part, you will be dealing with the security purpose of the Salesforce. Security models are there. Okay. And you will be creating new custom objects like structure. You will be developing up the structure. You will be creating flows to handle the business logic, business requirements, all those things. And in the development side, you will be doing the coding. So, and there are many other career opportunities also in Salesforce, like business analyst are there. Many more roles are there. Consultant is there. So all those things are there. But mainly these two are the most in demands: developer and then the admin. These two are the mostly in demand roles. So since you are saying you have zero knowledge of the coding, so Yes, sir. okay. So, but it depends on you now. Okay. You don't have the knowledge, that's fine. But are you interested in learning to code or not? First of all, ask this question. Okay. If you're if you're not interested in learning the coding, or because in this course we'll be going from scratch. I will be teaching each and everything about the coding. Like what are the variables I will be teaching, what are the functions, what is loops, all those things I will be explaining from scratch. Okay, so you will be learning, but it entirely depends on your area of interest also. Okay. Because while writing the code, the main thing required is your sense of thinking. Okay, the Okay. problem solving skills which you are having, how quickly you can understand the problem, and how quickly you can uh, design some kind of logical solution in your mind. Writing the code is whole different thing. So writing the code different. So first you need to understand, like for example, if I ask someone, tell me the table of 10. Okay. So how they will do? They will add 10, 10, 10, 10, 10. This is the main logic behind it. Okay. Yeah. Like 10, 10 into 1 is 10, 10 into 2 is 20. So what they did, they added 10 again.
Then for another 10 to 3, they will add 10 again. So this is the business logic, add 10 after everything. So this is one thing. So this is how you think in your mind, the solution. So this is what you need to think. And then uh, the syntax part and everything, like how to write the code and everything, that you will be learning anyhow. That's fine. But once you complete this course, no, you can ask yourself question, okay, now I know how to write the code also, but do I want to write code in my whole IT industry? Because it's not like developers will be paid more or the admin people will paid less. It's not like that. There are many admins who are earning very well, and sometimes they are earning more than the developers also, and it's vice versa also. Developers are earning more than admins also. It basically depends on your skills and how uh, in excellent way or how good you can show your skills to the business. Because if you solve something for your client, okay, then Okay. client will be ready to pay you any money. There are Okay. many big clients are there also who will be paying you in as much money you ask if you are ready to solve their problems. Okay. The main thing is I want to ask one question actually, sir. The main Yes, thing is I'm from a non-IT background. Okay, the company will hire me or not for that because seeing the they BSc will, background. because nowadays the degree, if you see, in many big companies are not entirely looking into your what degree you have done. They just most of the time how the interview process happens now. Okay, you create your resume, okay, and in your resume you enter your skills and everything. Then sometimes they conduct a online test. Okay, so if you could clear that online test, if you have knowledge, you are clearing the online test, then the companies are not at all interested what degree you have done. They say, okay, this client has the knowledge and has the skills, then we are okay to hire. Then the interview happens and all those things. You need to clear the interviews and everything, but yeah, degree doesn't depend here for career in Salesforce. Thank you, I sir. can give you my example. Okay, but I am from IT background. It's not kind of similar to you, but I was a back then I was a Java developer. Okay, a Java and a full stack developer. When I first came into this Salesforce industry, they I didn't know anything about Salesforce, what Salesforce is, anything I didn't know. But the company they asked some questions to me, because for them also like it's a kind of similar thing. Is they are entire the company was entirely working into Salesforce domain. They have many much experienced Salesforce employees, but I had zero knowledge of what Salesforce. So I am kind of in a similar place where you are now for Okay. them. Okay, so they just ask me basic questions like, okay, leave Salesforce. Okay, they just gave me some problems. Okay, this is the problem we are having. How would you solve this thing? Just tell us the logic. What could you implement? So if I was able to tell them the logic, no, okay, this is the logic which I can implement. So they thought, okay, learning the syntax is kind of the easy work. Okay, because syntax you can anyhow learn from Google or YouTube or anywhere, like how to write a function or how to write a Apex code. These all things we can learn. But the uh, developing the logic of the problem in hand is the main tricky part here. So this, if you are able to crack that logic, no, then you will be hired. I can assure you those things. So don't worry about it. Like if since you are from non-IT background, you will not get job in Salesforce or anything. You just need to be focused and develop your skills. Okay, I will be sharing some Trailhead links. This website called Trailhead. Okay, so in that Trailhead website, you can uh, solve the problem. So why I'm saying to use Trailhead? With Trailhead, it gives you what do you say? Like how the in business world, how what kind of problems you will be getting. It will give you some example of that. Okay, so you will be solving some real time examples, and which will boost your confidence also and your skills. So when at the time of interview, whenever interview happens, you will be able to crack those interviews also.
And many companies nowadays are looking into your trailhead score, like how much score you are having. In trailhead, you get some scores after you complete each and every module. Depends on the module, how much score is that is there for that module. Sometimes it's 100, sometimes it's 1,000. It depends. So, how much score you're having, some companies look into that as well, and they hire according to that also. So I would suggest, since you're from non-IT background, just focus on Trailhead also. Whenever I say like this is the Trailhead link for this domain, for the topic which we have covered, just try to complete those on time. That would be good for you. I hope I was able to answer your question, Saurabh. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Anyone else now, Rishi? Uh, s- Hello, Rishi. Are you there? Hello, sir. Sorry, who's this? Sir, I'm Shubham. Shubham. Yeah, sir, can you hear me? Yeah, hi Shubham. Hello. Yes, Uh, now you s are much clear. yeah, yeah. So, sir, how to go through on Trailhead, how to solve the problem? Can you give sound information about that? Yeah, all those things I will be giving. Okay, how to create an account on Trailhead and what domain you should start with. Okay, means which module you should start with. And with each and every topic, I will be sharing the Trailhead link for that topic also. After once we complete much deep into those topics. Okay, so I will be sharing each and everything with you. So don't worry about that. And Shivam, can you give me your introduction now first, please? Yes, sir. Actually, I'm Shubham Mahajan. I'm from Maharashtra, and 2021 I'm completed my engineering, and 2022 I'm completed CDAC. So currently I'm working in a Agria solution. So that's my role. Okay, so you did BTech in which domain? Yeah, engineering in mechanical field. Oh, you're from mechanical. Yeah. Okay. And after that, I'm completed CDAC. And Okay. yeah, Yeah, great. that's So just one thing, sorry to interrupt. Everyone is comfortable with Hindi because I would be taking some of the things I will be explaining in Hindi. Is everyone yes, fine? yes, not an issue. Is yeah, if Hello. anyone has problem understanding Hindi, let me know, please. Hello. Yeah, yes, what? Yes, I have to introduce myself. Yeah, please. So Today is my it's your first first lecture. lecture today, Yes, correct? today is my first lecture, sir. Yeah. Hello, sir. I am Swapnil Landge, and I belong to Pune, and I have completed my graduation in pharmacy. After that successful completion, I did MBA in marketing, and currently I'm doing a job in healthcare sector as assistant manager. Okay, as an And assistant manager. yes, Okay. Great. yeah, yeah. I'm Yeah, currently so since you staying have in done Pune. marketing, then it would be good for you, the Salesforce store. I will explain you Yes, why. I thought yes. Yeah, in future you will get to know. Because the nowadays marketing team are using this Salesforce tool for to make their marketing job much easier. Like that email marketing and all those things, you can do much easily. Sorry for disturbance from my Correct, give me a second. correct. Yes. Yeah, so in the meantime, Manjushri, can you introduce? Yes, sir. Myself, Manjusri Rinde. I completed my 11th 12th from Aurangabad, and I recently completed my B.Pharm You recently completed your voice broken between. B.Pharm degree, Bachelor in Pharmacy. Oh, Bachelor of Pharmacy. Okay, just give me a second. So, anyone else who joined today? I guess Abhinay, Hello, it's your I'm first audible. lecture. Hello, Yeah, Vinod. Yeah, this side Vinod. Actually, I'm joining first time this lecture. I have completed yeah. my BSc Biotechnology from Latur, and then I did management in pharmaceuticals. And this is the first time I'm joining this lecture, sir.
Okay, so you are also from non-IT background, correct? Yeah, non-IT background. Yes, yes. Yeah, okay. Not an I'm issue. working in a marketing field only, in healthcare sector only. So, as per my understanding, if I'm not wrong, Vinod and what was the other person's name who just Opening, introduced? Swapnil. Yeah. Yes. So you both, if I'm not wrong, working together. since you are from the marketing, you would be working mostly into the admin stuff. Okay, in future. But that depends if you want to work as developer also, that's not wrong. But since you're from marketing domain, as a my suggestion, it would be better if you just work into the admin, and because in admin there is another thing called as marketing cloud in Salesforce in future. Okay, so once you get the admin knowledge, no, then from there you can learn about the marketing cloud, and that would boost your resume and all those things to a next level. Because in marketing cloud nowadays there are requirement is very more, but the resources for the marketing cloud are little bit less. So that's why I was saying. Okay. Great, Yeah, great. that's just a suggestion from my end. Okay. Yeah. Okay, Rishi, are you there or not now? Not sure. Myself, Vivek Tiwari. So, I am done my okay, so graduation from electrical engineering in Government College of Engineering, Amravati. I am from Khamgaon, Buldhana district. okay, you did your engineering in electrical. I am done my Hello. engineer. I am done my electrical engineering from Government College of Engineering, Amravati. Oh, okay, great. So you just now completed, or you? Yes, 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 sir. I'm currently graduate, 2023 pass. Oh, this year on. Oh. So are you working in any company currently, or? No, sir. No. Yeah. Okay. Okay. So you are just learning this course for the placement opportunities. Correct? Yes, yes, sir. Great. Great. So, so yeah. So today, what I'll do is I will give you brief about the cloud computing. Okay. So like what a cloud computing is and why do we use, and because Salesforce is nothing but a cloud computing CRM software. Okay. So first let me explain you what a cloud computing is, and from there I can carry on. Let me share my screen. Let me know once the screen is visible. Is my screen visible? Yes, sir. Huh. So what is the cloud computing? First let so देखो जैसे एक होता क्या है, like we are having a, for example, there is a website. Okay. So like in simple I have written here, it's a magical computer that can do. So, for example, you are using this laptop, but laptop which you are using, it's available to you physically in your hand. It is physically available in your hand. But now, for example, you want to use some other now you don't have the laptop, but you want to perform all the laptop functionalities without having the proper. For example, you are having a 8 GB RAM laptop, okay, but now you want to run some software that requires a 16 GB of RAM. In your physical laptop that could not be performed, but there are some tools available now through which you can perform those tasks on a using the internet. Okay, so using internet you can perform any tasks that physical availability of that resource is not that much required. So in simple words, if I can explain is आप ये हमारे जैसे लैपटॉप, in this laptop you are having Windows installed, Windows operating system. Okay, but has anyone heard about Ubuntu operating system or Mac operating system? Yes, Ritik, we have heard of it. Yeah, okay. So there are different operating systems like Windows, Macs, and Unix.
Okay, so now you are having the Windows operating system physically installed in your laptop, but now we want to perform some task जिसके अंदर हमें यूनिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। तो एक पॉसिबल सोल्यूशन होगा, हम एक दूसरा लैपटॉप ले आए, ठीक है, और उसके अंदर हम यूनिक्स डालें। जब विंडोज का काम है तो विंडोज लैपटॉप यूज करें, जब यूनिक्स का काम है तो यूनिक्स लैपटॉप यूज करें। दिस इज द वन सोल्यूशन जो ओल्ड टाइम में यूज होता था। तो उसके लिए क्या होता था, इससे आपका कॉस्ट भी बढ़ गई, ठीक है, आपकी कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि फिजिकली आपको नया लैपटॉप हमें बाय करना पड़ा। और फिर और भी बहुत चीजें बढ़ते हैं, ऐसे करके कितने कितने आप ले लोगे। फिर स्टोरेज की इश्यू आता है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप स्टोरेज को स्केल कर सकते हो, वो चीजें मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो दूसरा सोल्यूशन क्या होता है, आप अपने जो फिजिकल लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो अब दूसरे सॉफ्टवेयर आ गए जिसके अंदर आप अपने लैपटॉप के ऊपर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो वर्चुअल। तो आपका अब लैपटॉप एक ही है, पर आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो उसका, विंडोज भी और आपका यूनिक्स भी। ऐसे करके उसी के थ्रू आप तीसरा भी यूज कर सकते हो, मैक। तो इससे क्या हुआ, आपका रिसोर्स की जो कॉस्ट है वो आपकी बच गई। बस आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ा अपने लैपटॉप। तो बेसिक एग्जांपल समझ आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग का। या और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। हेलो। Yes, Ritik, maybe you can explain it with some another example so that it will be हाँ, clear for all of us. तो अगर दूसरा एग्जांपल लूँ तो जैसे हमारा गूगल ड्राइव, ठीक है। अब गूगल ड्राइव पे आप क्या करते हो, अब गूगल ड्राइव के ऊपर फोटोज आपके होती है। पहले के टाइम में आप फोटोज कैसे शेयर करते थे आप, ब्लूटूथ से। सबसे पहले क्या होता था, फोटोज का हम प्रिंट आउट लेते थे। एक सेकंड, डिस्टर्बेंस आ रही है, एक second। हाँ ठीक है, चलेगा। तो एक सबसे पहले टाइम में क्या होता था, फोटोज खींची हमने, मतलब फोटोज क्लिक करी अब हमारी, उसका प्रिंट आउट निकला, और वही हमने फोटोज जो प्रिंट आउट निकला वो हमने शेयर करी फिजिकली। सबसे पहले ये होता था। फिर सेकंड क्या आया, ब्लूटूथ। पर ब्लूटूथ के लिए भी क्या था, वो रेंज रेंज बहुत ज्यादा कम होती थी ब्लूटूथ की, कि उस बंदे को आपके पास तो होना पड़ेगा तभी आप शेयर कर सकते हो। पर आज हम कैसे फोटो शेयर करते हैं, फोटोज या वीडियोस गूगल ड्राइव के थ्रू। आप गूगल ड्राइव पे फोटो सब अपलोड करते हो, ठीक है, और फिर वो उसका आप बस लिंक दे देते हो व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जैसे भी आपको लिंक देना है, आप लिंक सेंड करते हो, फिर वो वहां से फोटोज को डाउनलोड कर लेता है आपका फ्रेंड। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने किसी से क्लाउड में अपनी फोटोज डाल दी, उधर से अब उसको कोई भी आपका फ्रेंड एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास वो लिंक होगा। अब आप उसको सिक्योर कर सकते हो विद अ पासवर्ड अपने फोल्डर पे। जिसके पास वो पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड डालेगा, उसको एक्सेस ले लेगा। अब उसको आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि बस व्यू एक्सेस ही मिले यूजर को, दूसरे यूजर को एडिट एक्सेस ना हो। वो सब चीज़ तो आगे आती है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। सिक्योरिटी पर्पसेस क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। एक क्लाउड के अंदर आपके पास एक टाइप का लॉकर या कह लो कुछ, एक सर्वर टाइप का आपको मिल गया जिसके अंदर आप अपनी चीजें अपलोड कर रहे हो, और उसका एक्सेस आप उसको आप किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर पा रहे हो, बीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब वो कहीं पे भी हो। इस एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। Yes. एनीवन हैज एनी डाउट? आई विल टेक इट एज नो क्वेश्चंस। तो और हाँ, प्लीज एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूंगा, अगर कभी भी किसी को कोई भी डाउट होगा ना, ये मैं जब स्टार्टिंग में इससे पहले जब हमारे लेक्चर्स हुए कुछ तो मैंने बोला था, मेरे को उसी टाइम इंटरप्ट कर देना प्लीज। और इस सेशन को जितना इंटरेक्टिव कर सकते हो प्लीज करो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है
अभी तो आपको काफी ज्यादा थियोरेटिकल लगेगा, आगे जाके प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, कोड्स लिखेंगे और फ्लोस बनाएंगे, वो चीजें करेंगे। तो उसके बाद उस टाइम पे आप क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बस। और एक टॉपिक सिर्फ ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप जितने क्वेश्चन पूछोगे उतने ही आपको क्लैरिटी होती रहेगी अपने टॉपिक्स के ऊपर। और जैसे बहुत से लोग यहाँ पे नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, तो उनको तो उस टाइम पे काफी क्वेश्चन आएंगे, तो बस मैं यही कहूंगा उसी टाइम इंटरप्ट कर दो जैसे क्वेश्चन आते हैं। ये मैं सोचता कि लेक्चर के एंड में पूछेंगे ऐसे। ठीक है। हाँ। तो देखो अब सेकंड क्या आता है हमारा, सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आप सबको दे देता हूँ। ये एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम टूल है। बाय सीआरएम से मेरा क्या मतलब होता है, सीआरएम क्या होता है आपका, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, ये सीआरएम की फुल फॉर्म है। तो अब इससे हमें क्या समझ आता है कि एक आपका एक कस्टमर है, ठीक है ना, आप मान लो आपकी एक शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है आपका। अब ग्रोसरी स्टोर के ऊपर आपका कोई कस्टमर आया, ठीक है। अब कस्टमर को क्या प्रोडक्ट हमें सजेस्ट करना है, ठीक है ना। और अपने अपने स्टोर की हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, बीट ईमेल मार्केटिंग, ठीक है ना। ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, और भी तरीके मार्केटिंग होती होंगी जो मेरे माइंड में नहीं आ रही, ठीक है ना। मार्केटिंग कैसे करनी है आपको अपने स्टोर की। और फिर अब जो जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनका डेटा कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। कि और फिर डेटा के बेसिस पे किस कस्टमर को क्या प्रोडक्ट सजेस्ट होना चाहिए, वो सब चीजें ना अब आपके ये सारा काम। पहले बहुत मुश्किल होता था क्योंकि जब ये सेल्स फोर्स नहीं था, और क्योंकि डेट पहले जब सेल्स फोर्स नहीं था तब सबसे बड़ा इशू था डेटा, डेटा मैनेजमेंट का। डेटा ही नहीं मैनेज होता था हर एक कस्टमर का कि कैसे करना है डेटा मैनेज। प्रोडक्ट तो बाद में सजेस्ट करेंगे, पहले डेटा ही नहीं हमें पता होता था किसी कस्टमर कैसा है। और उसके बाद सेल्स फोर्स ने हमारा कोड जनरेशन, कोड इन द सेंस बिल्ड जनरेशन, और इन सब चीजों को भी काफी इजी कर दिया प्रोसेस पहले कंपैरेटिवली। तो इन सब टॉपिक्स, इन सब चीजों से ना सेल्स फोर्स ने हेल्प करा है। सेल्स और सर्विस जो होती है ना, हमारा सर्विस मॉड्यूल हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स साइकिल, इन सब प्रोसेसेस को काफी इजी करती है। सेल्स साइकिल में क्या आ गया आपका, कस्टमर को पहले मार्केटिंग करना, फिर कस्टमर का आपके स्टोर में आना, कस्टमर को प्रोडक्ट सजेस्ट करना, और फिर वो सेल प्रोडक्ट उसको सेल करना। यहाँ तक आपकी सेल्स साइकिल आती है। फिर सेल्स साइकिल के बाद आता है सर्विस साइकिल, कि एक बार कस्टमर आपके स्टोर से प्रोडक्ट ले गया, अब उसको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड हो, उन कस्टमर का फीडबैक लेना हर थोड़े टाइम में कि आपको कोई इश्यू तो नहीं आ रहा प्रोडक्ट के साथ। और फिर इसी सर्विस साइकिल से ही फिर दोबारा से सेल्स साइकिल शुरू होती है, उसको नए नए प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग। ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं सारे प्रोसेसेस। तो ये पूरा जो इसका फ्लो है ना, इस सब फ्लो को सेल्स फोर्स ने बहुत ज्यादा इजी कर दिया है एक क्लाउड बेस्ड के ऊपर। और इसके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि क्लाउड बेस्ड टूल आपको एक वेबसाइट पे लॉगिन करना है salesforce.com, और उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्योंकि काफी सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे उनके लिए पहले ही वो कहते हैं 8 GB रैम होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, 16 GB रैम होनी चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो अब वो हर किसी का उतने पावरफुल लैपटॉप्स नहीं होते। तो ये भी एक रीजन है सेल्सफोर्स आज इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि वो पूरा क्लाउड बेस्ड है। तो रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, आपके रिसोर्स पे जो स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, जो कि आजकल हर एक के पास हो। और सेल्सफोर्स का एक और अलग बेनिफिट अगर मैं बताऊं तो वो मोबाइल पे भी काफी अच्छा चलता है, मोबाइल के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो सेल्सफोर्स को। मैंने अभी तक ऐसे मोबाइल पे इतना यूज नहीं किया है, मैं लैपटॉप से ही ज्यादा यूज करता हूँ। पर हाँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लाइंट्स के साथ उन सबका, उन्होंने यही बताया कि मोबाइल पे सेल्स काफी अच्छा चलता है। पर हाँ, मोबाइल पे आप उतनी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। पर हाँ, कि नया रिकॉर्ड बनाना, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको, रिकॉर्ड्स के होते हैं और सब, तो वो सब चीजें आप इजिली कर सकते हो। तो ये समझ आ गया आपको सेल्स फोर्स का बेनिफिट क्या होता है आपका, कि क्या है सेल्स फोर्स और उसका बेनिफिट क्या है।
ठीक है, तो इधर भी कोई क्वेश्चन है ना किसी का भी सेल्स फोर्स से रिलेटेड भी? हेलो या सर, ये आपका जो अभी सेशन होने के बाद हमें नोट्स प्रोवाइड होंगे हिस्ट्री के सब जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है इसका? हाँ, तो एक काम करूंगा मैं, मैं बात करके एक ना ड्राइव का डॉक्यूमेंट फोल्डर बना दूंगा, ठीक है? हम्म। तो मैं एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट आपका एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, मैं इसके ऊपर ही हर रोज अपडेट करता रहूंगा लेक्चर के अकॉर्डिंगली अपने नोट्स के अंदर, ठीक है? और ना मैं इसका एक्सेस व्यू ओनली एक्सेस ही दूंगा, पर मैं टू बी फ्रैंक, ठीक है ना, व्यू ओनली एक्सेस में सबको दे दूंगा उस फोल्डर पे। और अगर मेरे को ओके। आगे जाके कुछ भी मिलेगा, जैसे अगर आगे जाके हम असेसमेंट्स भी करेंगे और कोई असाइनमेंट्स या कोई क्वेश्चंस करेंगे, उसका भी मैं वो सारी से मतलब उसी एक फोल्डर में डालता रहूंगा, और उसका एक्सेस सबको दे दूंगा मैं। वो मैं बात करके एक फोल्डर बना के सबको पास उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँ, चलिए। ठीक है? यस। ठीक है, तो देखो अब अगला क्या होता है आपका, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल से और कुछ लॉजिक नहीं है इसका, कि टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, एक तरीके से कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप के क्लाउड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये आपके 4 टाइप्स के क्लाउड्स अवेलेबल हैं आज मार्केट में: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है ना? देखो, पब्लिक क्लाउड क्या है, जो कि पब्लिकली सबके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो इसका क्या हो गया, मतलब एक सेल्स फोर्स जो है आपका एक तरीके से पब्लिक क्लाउड पे भी वर्क करता है। तो क्योंकि पब्लिक क्लाउड जब वर्क करता है तो वो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर फॉलो करता है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा जब सेल्स फोर्स हम डीप में जाएंगे ना, अगला हमारा लेक्चर जो होगा वो सेल्स फोर्स के ऊपर होगा पूरा। आज मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक समझा रहा हूँ आज, और एक और क्लास होगी जिसमें वर्चुअलाइजेशन समझाऊंगा मैं। उसके बाद हम पूरा सेल्स फोर्स में डाइव इन करेंगे, उधर सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। पर एक उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी आएगी आगे जाके, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। अगर मैं बेसिकली सिंपल और में एक्सप्लेन करूं, जैसे आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, ठीक है? तो अब नीचे उस पीजी में जैसे होता है, पीजी पीजी के अंदर आपका ग्राउंड फ्लोर पे आपका वो अवेलेबल होता है, क्या कहते हैं उसे, डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आपको फूड सर्व किया जाता है। अब वो डाइनिंग एरिया को एक्सेस ऐसा तो नहीं है कि बस आप ही एक्सेस कर सकते हो। उस पीजी में जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज होंगे, सभी एक्सेस कर सकते हो उस डाइनिंग एरिया को। तो ये होता है मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, कि एक रिसोर्स को एक से ज्यादा रिसोर्सेस यूज, मतलब एक जो आपका फंक्शनैलिटी है उसको एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज यूज कर पा रही है। इसको सिक्योर करने के लिए सेल्सफोर्स क्या करता है, गवर्नर लिमिट्स लगा देता है कि हाँ, इतने नंबर ऑफ, ये एक एग्जैक्ट नंबर है, इतना ही आप यूज कर सकती है एक कंपनी बस। कि जैसे एपेक्स क्लासेस का आपका 500 होता है फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 500। तो 500 क्लासेस ही आप लिख सकते हो, एक कंपनी 500 क्लासेस ही लिख सकती है। तो दूसरी कम फिर 500 के, हर एक कंपनी को 500 ही मिलेगी बस वैसे करके। जैसे आप जो खाना खाने जाते हो डाइनिंग एरिया में, तो वो लिमिट लगाते हैं ना कि एक एम्प्लॉय के लिए हमने बस 4 चपाती सी सर्व करेंगे हम बस, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि हर एक के लिए इक्वली अवेलेबल रहे, हर एक एम्प्लॉय के लिए हर कोई उस चीज का इक्वली एक्सेस कर पाए।
ठीक है, ये होता है आपका पब्लिक क्लाउड, कि एक ही फंक्शनैलिटी को एक से ज्यादा कंपनी इजीली यूज कर पा रही। पब्लिक क्लाउड समझ आ गया सबको? PSC हाँ। अब फिर सेकंड आता है आपका प्राइवेट क्लाउड। अब अगर प्राइवेट क्लाउड का मैं आपको बोलूं, प्राइवेट क्लाउड का, अब आप उस पीजी में अगर आप रह रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब पीजी का एग्जांपल हम अभी तक ले रहे थे, डाइनिंग एरिया का एक्सेस तो सबके पास है, पर क्या आपके बेडरूम का एक्सेस क्या हर कोई कर सकता है? नहीं ना, आपके बेडरूम का एक्सेस तो बस आप अकेले ही होगे जो कर सकते हो। तो ये होता है प्राइवेट क्लाउड का मतलब, कि ऐसा क्लाउड जिसके अंदर बस वो एक, हमने ऐसा क्लाउड बनाया है जिसको बस आपकी कंपनी ही यूज करे। सेल्सफोर्स प्राइवेट क्लाउड पे ही वर्क करता है, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो बहुत कम कंपनीज यूज कर रही हैं आज प्राइवेट क्लाउड पे सेल्सफोर्स को, पर जिनका काफी ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं या बहुत ज्यादा सिक्योर डेटा रख रहे हैं जो, तो वो प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं, पर वो काफी एक्सपेंसिव है आगे जाके। तो इसलिए, और वो सबसे ज्यादा सिक्योर भी वही है, क्योंकि उसके अंदर बस आप ही यूज कर रहे हो उस क्लाउड को, उसके अंदर आप ही का ही डेटा अवेलेबल है और किसी का डेटा नहीं है, और कोई एक्सेस भी नहीं कर सकते उस डेटा को। तो इसलिए वो सिक्योर भी सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। फिर सेकंड आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। ये क्या है? मिक्सचर है पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। इसके अंदर क्या है कि कुछ कुछ चीजें तो आपकी पब्लिकली सबको अवेलेबल है, ठीक है ना, और कुछ कुछ चीजें आपका बस आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आज, अगर मैं आज के एग्जांपल पे जाऊं तो मोस्टली कंपनी हाइब्रिड क्लाउड ही यूज कर रही है, कि जो उनको लगता है जोन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो चाहते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाहर ना आ जाए, ये ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर ये बाहर चल गई तो हमारा काफी सारा बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस चीज को वो प्राइवेट क्लाउड पे रखते हैं। बाकी डेटा वो लोग पब्लिक क्लाउड पे रख देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो कॉस्ट है मैनेज होगी। ठीक है, हमें इतने ही सर्विस के लिए हमें प्राइवेट क्लाउड यूज करना पड़ा, इतना ही उसकी स्टोरेज लेनी पड़ी, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई। बाकी हमने पब्लिक क्लाउड ले लिया जो कि सस्ता है। फिर आता है आपका कम्युनिटी क्लाउड। इस कम्युनिटी क्लाउड कुछ नहीं, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, कि मान लो हेल्थ केयर की सारी कंपनीज एक क्लाउड में आ जाएंगी, फिर आपकी आईटी इंडस्ट्रीज की सारी कंपनी एक क्लाउड में आ गई, तो ऐसे करके वो क्लब कर देता है कंपनीज को ऑन बेस ऑफ देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। और फिर हेल्थ केयर कंपनी अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती है, और फिर आईटी वालों के साथ ही अपना डेटा शेयर करेंगी, हेल्थ केयर के साथ नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो अब इन चारों क्लाउड्स के अंदर किसी को कोई भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, या इससे ऊपर जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन करा है। Hello, sir. सर या कोई भी पूछ Uh, लो पहले। can we explain the community cloud again? कम्युनिटी क्लाउड, तो कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, मान लो आपके यहाँ पे एक कंपनी है ए, ठीक है, वो आपका हेल्थ केयर में डील करती है। ठीक है, एक कंपनी है बी जो आईटी में डील करती है, एक कंपनी है सी जो अगेन हेल्थ केयर में, कंपनी डी जो कि आपकी अगेन आईटी में डील करती है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को यार एक आपको रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट के थ्रू, हमें अब ऐसा एक क्लाउड बनाना है, ऐसा कोई क्लाउड का डिप्लॉयमेंट मॉडल सजेस्ट करो कौन सा यूज करें हम, जिसके अंदर जो हेल्थ वाली हमारे पास कंपनी है ना इधर, उनका डेटा तो हम एक दूसरे शेयर कर लें, पर वो डेटा यार आईटी इंडस्ट्री कंपनी के साथ शेयर ना हो। तो उस टाइम पे हम ये कम्युनिटी क्लाउड की यूज करेंगे, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो डेटा होगा, कुछ कुछ डेटा ऐसा हो सकता है हेल्थ केयर के अंदर भी, कि आपके पास जो कि आपका कैसे बताऊं?
कि जैसे कि कोई सॉल्ट है हेल्थ केयर के अंदर, फॉर एग्जांपल, है ना, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर कोई आप मेडिसिन बना रहे हो, तो वो जो सॉल्ट है, मैं सॉल्ट का नाम भूल, जैसे आपका फीवर के अंदर जो आपको होता है ना, जो हम दवाई खाते हैं, जैसे डोलो हो गई, और भी फीवर के अंदर सूमो, इन सब मेडिसिन के अंदर सॉल्ट तो सेम है, करेक्ट। बस कंपनी का मेडिसिन का नेम अलग है। अ, एक कंपनी ने डोलो के नाम से बनाया है, दूसरी कंपनी आपके सूमो के नाम से बना रही है, इस तरीके से। तो अब अ, तो जो सॉल्ट की इंफॉर्मेशन है कि ये सॉल्ट हमारा फीवर पे वर्क करेगा, अब दूसरा सॉल्ट पे पेन किलर के वर्क करेगा, तो ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो हेल्थ केयर के इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी ए को भी चाहिए वाली इंफॉर्मेशन, और कंपनी सी को भी चाहिए, जो दोनों की हमारी हेल्थ केयर की कंपनीज थी। तो इस टाइप को डेटा को शेयर करने के लिए, इजीली शेयर करने के लिए कम्युनिटी क्लाउड यूज करते हैं। और इसके अंदर फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक, अगर मैं और थोड़ा सा वास्ट में जाऊं, कम्युनिटी क्लाउड के अंदर प्राइवेट क्लाउड भी डाल, कि पूरा कम्युनिटी क्लाउड के अंदर तो आपकी ए और सी कंपनी आपकी कम्युनिटी क्लाउड में आ गई, जो आप में डेटा शेयर कर रही है, पर मैंने कंपनी ए के अंदर ही प्राइवेट क्लाउड भी लगा दिया, प्राइवेट क्लाउड सॉरी हाइब्रिड क्लाउड भी लगा दिया, जो कि पब्लिकली तो वो उसका इंफॉर्मेशन ले रही है, सॉल्ट का इंफॉर्मेशन, पर अपनी जो, कि वो उसने कितना पोर्शन लिया उस सॉल्ट का, मतलब कितना एमजी डाला, क्या करा, कैसे मिक्सचर बनाया मेडिसिन बनाते हुए, वो इन्फॉर्मेशन ताकि लीक ना हो कंपनी सी के साथ, वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन उसने प्राइवेट क्लाउड में डाल दी। तो ये आपके एक तरीके से हाइब्रिड क्लाउड का मिक्सचर हो गया, इसमें दो क्लाउड मिक्स होके आ गए आपके, एक कम्युनिटी क्लाउड भी मिक्स हो गया। कम्युनिटी क्लाउड इधर एक तरीके से पब्लिक क्लाउड की तरह वर्क कर रहा है, जिसका नंबर दो ही कंपनी है, और प्राइवेट क्लाउड भी यूज हो गया, जिस जहाँ पे वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि जो मेडिसिन बनाने की रेसिपी है, तो अगर मैं सिंपल में बोलूँ रेसिपी, कि कैसे वो मेडिसिन प्रिपेयर हुई है हमें। थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या कम्युनिटी क्लाउड? Yes, sir. तो और भी कोई एक और क्वेश्चन पूछा था कोई और? हेलो? एक और किसने क्वेश्चन पूछ रहा था ना, कोई और बीच में अभी? I think someone has unmuted himself, but it's not speaking. By mistakenly, maybe. नहीं, क्योंकि इसने सर भी बोला था जब शायद ये क्वेश्चन तो मंजुश्री आपने पूछा था शायद। Yes, sir. मैंने कम्युनिटी क्लाउड चाहते सर। हाँ, तो आपने भी किसी और ने भी पूछा, चलो ठीक है। और जो क्वेश्चन है कोई? तो हार्दिक, सो सबसे ज्यादा कौन सा क्लाउड का यूज होता है? सबसे ज्यादा पब्लिक, ओके। सबसे ज्यादा होता है आपका पब्लिक, फिर आता है आपका हाइब्रिड, फिर आएगा आपको कम्युनिटी, फिर हाइब्रिड है, फिर प्राइवेट, सबसे कम प्राइवेट। पर प्राइवेट का बस नुकसान ही यही है कि वो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा, ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान उसका ये है, इसलिए वो कम यूज होता है। बड़ी कंपनी ही उसको अफोर्ड कर सकती है, जो आपकी छोटी कंपनी है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। और सेल्स फोर्स में अगर मैं जाऊं, तो आपका सबसे ज्यादा, अगर सेल्स फोर्स के डोमेन से अगर मैं बात करूं, तो उसका सबसे ज्यादा आपका पब्लिक और कम्युनिटी ही यूज हो रहे हैं। ये हाइब्रिड भी कम हो रहा है उधर, तो हाइब्रिड और प्राइवेट तो अभी ना के बराबर ही है। पर हाँ, कम्युनिटी और ये आपको पब्लिक क्लाउड काफी यूज हो रहा है, पब्लिक सबसे ज्यादा हो रहा है, 80% कंपनीज तो पब्लिक क्लाउड ही यूज कर खास करके इन सेल्स फोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन सेल्स फोर्स डोमेन। मैं बाकी डोमेन्स पे नहीं जा रहा हूँ, बाकी डोमेन्स का एक्चुअली मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, पर ओके। हेलो सर। हाँ। सर ये सब नोट्स मिलने वाले क्या मुझे हमको, मतलब क्या नोट्स, क्या? ये सब नोट्स मिलने वाले का मतलब हमें? ये सब नोट्स, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई। क्या कह रहे नहीं, हो? नोट्स मिलने वाले क्या हमको, ये सब आपने जो बोला वो सब? ये मैं
मतलब ये डेटा अपने शेयर कर दूं कि कितनी परसेंट कंपनी कौन सी यूज कर रही है सबसे ज्यादा, ये आप कह रहे हो? हाँ ये सब नोट्स, हाँ, हाँ ये सब। ये मैं नोट्स में अपडेट करके जब मैं आपको शेयर करूंगा उसमें डाल दूंगा फिर, ठीक है ना, एग्जैक्ट डेटा। तो मेरे को फिर अपने गूगल पे भी करना पड़ेगा, एक बार सर्च करा कि कितनी परसेंट कौन से क्लाउड यूज हो रहे हैं सब, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करके फिर। No, Ritik, I think he is asking about this document which you are explaining. So हाँ are तो you ये तो able मैंने, to share with us? हाँ ये तो मैंने बताया ना, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा गूगल ड्राइव पे, ठीक Yeah. है, और उसका एक्सेस सबको दे दूंगा। पर व्यू ओनली एक्सेस ही दूंगा मैं उसके अंदर, क्योंकि ताकि डॉक्यूमेंट को कोई एडिट ना कर पाए, ठीक है। पर हाँ, व्यू ओनली का एक्सेस सबको मिल जाएगा, तो आप ये डॉक्यूमेंट, पर डॉक्यूमेंट देखो, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपको एक ही रहेगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था। मैं इसी के अंदर बस रोज अपडेट करता रहूंगा अपने अपने नोट्स, जो भी टॉपिक होगा उसके नोट्स में इसी के अंदर अपडेट करके लेक्चर वाइज, और फिर आगे बढ़ता रहेगा ये, मतलब ये डॉक्यूमेंट इंक्रीज होता रहेगा। अभी जैसे 6 पेज का है, तो आगे जाके हो सकता है ये 100 पेज का भी हो जाए, पता नहीं कितने पेज का जाएगा ये, ठीक है। Yes. हाँ यही था ना क्वेश्चन, तो कुछ और था? हाँ यही था. ठीक है, हाँ हाँ, तो ये मैं शेयर करवा दूंगा, मेरे को उसके लिए बात करनी पड़ेगी गूगल ड्राइव का फोल्डर बनवाने के लिए, वो मैं बनवा के आपके साथ शेयर करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ तो मैं कहूँ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आपकी वाटर क्या पियो, 5 मिनट में दोबारा कनेक्ट करते हैं, मैं भी पानी पी के आता हूँ, ठीक है ना। 8:05 पे स्टार्ट करते हैं दोबारा।
हेलो। हेलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? हेलो। हेलो, आगे से वापस बांधने में ठीक है। कंफर्म कर दो, अगर से वापस आ गए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सब थम्स अप सेंड कर दो चैट में, अगर सब आ गए प्लीज। ठीक है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्लाउड सर्विस मॉडल। इधर आपके तीन टाइप के होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS जिसे बोला जाता है। फिर आता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये मैंने एक और एक्सप्लेन कर रखा है नीचे, फंक्शन एज सर्विस, पर वो इतना अभी तक यूज नहीं होता, तो अभी उसको इग्नोर कर देना। मेनली ये तीन होते हैं आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ये तीन रहते हैं। तो हम पहले वाले पे आते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसका अगर मैं बेसिक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूं कि जैसे अगर आप कभी कुछ भी डेवलप करते हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली सर्वर्स चाहिए होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। आपको सर्वर्स चाहिए होते हैं, फिर आपको उस स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती हैं, डेटाबेस हो गया जैसे कि नेटवर्किंग के लिए वायर्स क्या चाहिए होंगी, ये सब चीज रिक्वायर्ड होती है। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में एक मॉडल आ चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, जिसका ना आपको अपफ्रंट कुछ भी पे नहीं करना, मतलब कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है अपफ्रंट। आप ये सब चीजें आप उनसे एज अ सर्विस यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपको सर्वर्स, वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे। कुछ कंपनी ऐसी है जो वर्चुअल सर्वर्स, वर्चुअल डेटाबेसेस आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उनको यूज करके अपनी चीजों को डेवलप कर सकते हो। ये होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। अगर इसका मैं एक और सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो अब आप एक वीआर गेम डेवलपर हो, वर्चुअल रियलिटी गेम डेवलपर हो। ठीक है, अब आपने, आपके पास लैपटॉप था तो आपने और यूनिटी सॉफ्टवेयर था, यूनिटी सॉफ्टवेयर गेम्स डेवलप होती है, तो आपका वो सॉफ्टवेयर था, आपने अब गेम बना दी। पर आपके पास अब इतना आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है कि आप एक नया वर्चुअल हेडसेट खरीद सके, क्योंकि वर्चुअल हेडसेट्स भी सस्ते नहीं है, काफी एक्सपेंसिव। तो अभी आप वो बाय नहीं कर सकते टेस्टिंग के लिए। तो अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, जिधर आप अपनी गेम अपलोड करो और आप उसका लुक एंड फील देख सकते हो कि वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट जब कोई यूजर पहनेगा तो उसको गेम कैसी दिखेगी। आप टेस्ट कर सकते हो अपनी गेम को। ऐसी भी वेबसाइट्स आ चुकी है मार्केट में। तो ये एक आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे आपको अपफ्रंट कॉस्ट नहीं करनी पड़ी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बाय करने की। आपने बस वो वेबसाइट यूज करी, उसकी सर्विस का रेंट के पैसे दिए उधर से उस सर्विस को यूज करने के लिए, और उसको करा। और इसका एक और बेनिफिट क्या होता है, स्केलेबिलिटी। इसको आप कभी भी, आज तो आपने वीआर के लिए यूज करा तो आपने वीआर का रेंट दिया, अब आगे जाके आप मान लो आपको वीआर की जरूरत नहीं है, अब आपने किसी और चीज की गेम बनाई है, मान लो आपने प्ले स्टेशन के लिए गेम बनाई, प्ले स्टेशन वीआर से सस्ता है। ठीक है, तो अब वो स्केल आपको डाउन करना है, मतलब आपको स्केलेबिलिटी अपनी, तो वो डाउन भी जा सकते हो और ऐसे ही अप भी जा सकते हो। आज प्ले स्टेशन को बनाई, कल आपको दोबारा वीआर के लिए बनानी है, तो फिर वीआर पे भी जा सकते हो। कभी भी आप अपने यूज केस के हिसाब से स्केल को अप और डाउन जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। Yes. ठीक है? तो देखो इस वाले क्लाउड का आपका बेस्ट यूज केस पता है क्या होता है, डेटा रिकवरी के लिए। ठीक है, डेटा रिकवरी कह लो या डिजास्टर रिकवरी कह लो। अब मान लो आपका हुआ क्या, आपका जो डेटा है, अभी अगर हम ओल्ड मॉडल के हिसाब से जाए, आपका आज न्यू दिल्ली के अंदर आपका ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है ना, उधर सारे सर्वर सिचुएटेड हैं और सब चीज है, और सारा डेटा आपको उन सर्वर्स में स्टोर्ड है। अब गॉड फॉरबिड उधर अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और सारा वो बिल्डिंग जो है आपका ऑफिस की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है ना, तो आपका तो सारा डेटा चला गया। तो इसलिए इस इन यूज केसेस के अंदर आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यूज होता है। इससे क्या होता है, आप वर्चुअली सर्वर्स को बाय कर सकते हो, उन वर्चुअल सर्वर्स के अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इससे अगर कभी भी कुछ डिजास्टर आते हैं, जैसे अर्थक्वेक या फ्लड या कुछ भी आते हैं, तो वो तो एक फिजिकल क्लैमिटी है ना, तो वर्चुअली थोड़ा ना अफेक्ट करेगी उस चीज को, वर्चुअल चीज को कैसे इम्पेक्ट कर देगी। तो इसलिए इन जगहों पे ये जो है, ये सर्विस जो है क्लाउड की काफी यूज में आती है। ठीक है, तो अब सेकंड आता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
अब सेकंड आता है प्लेटफॉर्म सर्विस। उसका ना क्या है, सर्वर्स वगैरह आपको खुद अपने बाय करने हैं, ठीक है ना, सर्वर्स डेटाबेस आप खुद बाय करोगे, ठीक पर वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा, प्लेटफॉर्म या फिर बहुत सारे टूल्स दे देगा जो कि रिक्वायर्ड है अब आपको आगे का अपनी चीजों को डेवलप करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आप, जिसमें गेम डेवलपमेंट का एग्जांपल लिया, तब आपको वर्चुअल हेडसेट अगर आपने फिजिकली बाय कर लिया, पर अब आपको ऑनलाइन पर आपको इतना स्ट्रॉन्ग लैपटॉप नहीं है कि आप यूनिटी इंस्टॉल करो, ठीक है। तो उसने आपको यूनिटी सॉफ्टवेयर को वर्चुअल यूज करने के लिए, या आपको इतना फाइनेंस पॉकेट नहीं है कि यूनिटी सॉफ्टवेयर का प्रीमियम वर्जन खरीद लो, तो वो सारी सर्विसेज आप यूज नहीं कर सकते उसकी। तो उन चीजों को उसने इजी करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट आ जाएगी जिसके ऊपर आप यूनिटी के सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो एट चीप कॉस्ट। बस आपको उतना रेंट पे करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको आप यूज कर सकते हो। तो अब अगर इसका मैं बेनिफिट बताऊं अगर आपको, तो इसका बेनिफिट क्या है, स्केलेबिलिटी। इसके अंदर आपको स्केलेबिलिटी कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रहती है। जैसे आप यूज करोगे उसकी स्केलेबिलिटी अपना बढ़ती रहेगी, ठीक है। जितने यूज करोगे, आज जैसे आज आपने दो फीचर यूज कर रहे हो यूनिटी सॉफ्टवेयर के, तो उतनी रही, कल आपने अगर और दो फीचर यूज करना है तो अपने आप वो स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करता रहेगा, और आपको वो पैसे बताता रहेगा, अच्छा आपने ये यूज किया, अब इसके ही पैसे पे करो, इसके पैसे पे करो, तो वो आपका बिल में जुड़ता रहता है। तो इसका अगर मैं बेस्ट यूज केस अगर आपको बताऊं तो ये आते हैं आपके डेटा एनालिटिक्स में काफी काम आता है, लार्ज डेटा को प्रोसेस करने के अंदर, कि कैसे आपका डेटा प्रोसेस होगा। डेवऑप्स के अंदर काफी यूज में आती है ये सर्विस आपकी। टेस्टिंग में आती है, ये वाला आपका प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग सॉफ्टवेयर का आपको प्लेटफॉर्म दे देगी, कहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने अब कोई वेबसाइट बनाई, वेब ऐप बनाई, वेब या मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, अब उसको टेस्टिंग के लिए उसने आपको प्लेटफॉर्म दे देगा कि ये आपका है, इधर आप टेस्ट कर सकते हो अपने उसको। ये सब आता है आपको प्लेटफॉर्म ऐसा सर्विस का। ये क्लियर हो गया? Ritik, just हाँ one जी। doubt over here. In platform as a service, as you mentioned, how is it different from infrastructure as a service? Because in infrastructure as a service, you said that we get the physical virtual access to the hardwares and the softwares we need, right? So in platform as a service, do we get the operating system to operate on, or how is it different from infrastructure? हाँ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको बेसिकली सर्वर्स और ये सब चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है ना, उसमें आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मतलब वो सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे उसके अंदर आप, सॉफ्टवेयर इन द सेंस यूनिटी हो गया आपके, ये सब चीजें इंक्लूड नहीं, उसके अंदर आपके इंक्लूड क्या होता है, सर्वर्स यूज इंक्लूड होता है, आपके डेटाबेस इंक्लूड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स यूज होंगे आपको, मतलब कि सर्वर डेटाबेस होता है, आपको वर्चुअल मशीन्स आती है, ये ये सब चीजें उसके अंदर आपकी आ जाएंगी, नेटवर्किंग की वायर्स, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। पर प्लेटफॉर्म के अंदर ये सब चीजें आपको फिजिकली आपके पास होनी चाहिए। ये या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, ये सब चीजें आप कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है ना। ए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस भी यूज कर लिया और जैसे प्लेटफॉर्म सर्विस भी यूज कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से आपने सर्वर्स ले लिए, या आपने असली में सर्वर्स खरीद ली, ठीक है ना, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल। पर जो एक प्ले ग्राउंड चाहिए आपको जहाँ पे आप चीजों को डेवलप करोगे, प्ले ग्राउंड हो गया या फिर आपका प्लेटफॉर्म कह लो एक तरीके से, वो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी। कि जैसे आपको कोई अगर वेबसाइट मोबाइल ऐप बनानी है, तो उसके लिए आपको जावा का या कोड लिखना है ना, तो जावा कोड जहाँ पे आप लिखोगे, तो वो एक कहाँ पे लिखना है जावा का कोड, उसके लिए अलग अलग टूल्स है, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो टूल है। तो उसको, वो जो चीजें आपको प्लेटफॉर्म, जो एक प्लेटफॉर्म है एंड्रॉइड स्टूडियो आपका, ठीक है, तो वो आपको प्लेटफॉर्म सर्विस में मिलेगा। प्लेटफॉर्म सर्विस में आपको सर्वर नहीं मिलेगा, उसमें आपको ये एंड्रॉइड स्टूडियो मिलेगा। पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ना मिलके सर्वर्स मिलेंगे, सर्वर्स और डेटाबेस मिलेंगे। हुआ थोड़ा सा क्लियर क्या?
Yes, you said that like it is like Java to write the Java code, you will get a studio kind of something. So doesn't हाँ it fall into the software category? Because in infrastructure we also get the software we require, right? सॉफ्टवेयर सर्विस का एक सेकंड का कोई दौर पे है। ठीक। देखो सॉफ्टवेयर सर्विस में अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा, उसमें पता है क्या होता है। उसके अंदर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर एक आपको सॉफ्टवेयर बना बनाया मिल गया, कुछ भी डेवलप नहीं करना। जैसे कि जीमेल, जीमेल एक सॉफ्टवेयर सर्विस है। जीमेल एक गूगल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ईमेल सेंड करने के लिए, आप बस उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अब नुकसान क्या है और फर्क क्या है प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर। उसके अंदर आप नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, उसने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पे आप नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करो। पर सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या होता है, आपको एक पूरे बना बनाया सॉफ्टवेयर मिले तो इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते। चाह कस्टमाइजेशन जो होती है बहुत लिमिटेड रहती है। ये नुकसान है सॉफ्टवेयर सर्विस का। क्लियर हुआ क्या थोड़ा सा ये? Yes, yes. Like in software, it is a predefined functionality हाँ provided by our clients. So which is the thing is that we cannot customize it, right? As you said, हाँ which is possible in maybe I guess in platform as a service because we are developing that software over हाँ the करेक्ट हाँ correct. So it is basically the part of customization which differs between these two. हाँ हाँ। तो अब पर अब अगर मैं एक और चीज बोलूंगा तो उससे थोड़ी सी ऐसे कंफ्यूजन और होगी। सेल्स फोर्स जो है आपका सॉफ्टवेयर सर्विस है, ठीक है। पर अगर आप कभी भी सेल्स फोर्स की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, आप कभी भी चले जाना आज लेक्चर के बाद है कभी, उस पे ना हर जगह आप एक वर्ड हमेशा पढ़ोगे, हाईली कस्टमाइजेबल सीआरएम टूल। पर ये आपका फॉल इन करता है सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर। तो पता है उसका मतलब क्या होता है कि आप सेल्स फोर्स जो बेसिक फंक्शनैलिटीज है ना उसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। पर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर बिजनेस नीड्स, कि आपको कैसे यूज करना है सेल्स फोर्स को, आप वो चीज कस्टमाइज कर सकते हो। पर जो सेल्स फोर्स की बेसिक फंक्शनैलिटीज है, जैसे बेसिक फंक्शनैलिटी अगर मैं बोलूँ तो कि आप एक चीज होती है ऑब्जेक्ट मैनेजर आपके सेल्स फोर्स के अंदर, ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऑब्जेक्ट मैनेजर का नाम चेंज करके आज आप कह रहे हो ऐप मैनेजर, ये चीज आप नहीं कर सकते। ये एक प्री डिफाइंड है, सेल्सफोर्स कंपनी ने टर्मिनोलॉजी बना रखी है, हम इस वाले टूल को ऑब्जेक्ट मैनेजर ही कहेंगे, आप ये चीज चेंज नहीं कर सकते। पर आप नए नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, उनको कुछ भी नेम दे सकते हो एज पर बिजनेस नीड। मतलब उतनी ही कस्टमाइजेशन कर सकते हो जितनी आपको एंड ऑफ द डे जिस कंपनी ने टूल बनाया है वो आपको अलाउ करेगी। ठीक है, इससे क्लियर हो गया? Yes. ठीक है ना, मतलब क्योंकि देखो होता क्या है, अगर आज आप एक चीज आप खुद बना रहे हो, ठीक है ना, तो उसको तो आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको जैसे भी वर्ड डॉक्यूमेंट का एग्जांपल देता हूँ, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट ये मैंने बनाया, अब इसका मैं चाहूँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इधर, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैंने खुद से बनाया, ठीक है ना। पर यही डॉक्यूमेंट पर आप तो एडिट नहीं कर पाओगे ना उतना ज्यादा, क्योंकि आपको तो उतने एडिट कर पाओगे जितना मैं आपको अलाउ करूंगा एडिट करने के लिए। मैं आपको बोलूंगा इसके अंदर ये टॉपिक से इधर आप चेंजेस मत करना, तो आप नहीं करोगे चेंजेस क्योंकि आपको मना किया गया। ठीक है ना, तो बस यही फर्क होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आपको एक प्लेग्राउंड टाइप की चीज मिल जाती है जहाँ पे आप खुद से पूरा स्क्रैच से सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और सॉफ्टवेयर सर्विस में आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलता है। ठीक है, और भी किसी को क्वेश्चन है? किसी एक ने लिखा था, शुभम ने, प्लीज क्या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या शुभम?
हेलो शुभम। ओके ग्रेट। और किसी को कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो मैं अब वर्चुअलाइजेशन के आपको इन ब्रीफ समझाऊंगा। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए इन डेप्थ मैं कल ही जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर इन डेप्थ जाऊंगा तो मेरे को और 1-1.5 घंटा चाहिए। ठीक है ना? तो इसका इन डेप्थ मैं आपको कल ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पर आज एक एग्जाम थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ वर्चुअलाइजेशन होती क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो देखो, वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है, उसको मैं नाम भूला सॉफ्टवेयर का, वर्चुअल बॉक्स है ऐसे कुछ नाम होता था उसका। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था, आप उसके अंदर ना दूसरा आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो उसके थ्रू। मतलब आप विंडोज के अंदर वो सॉफ्टवेयर डाल लो बस, तो उसके थ्रू आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पाते हो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ये होता है वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। अगर उसमें पढ़ोगे वो सॉफ्टवेयर की, अगर डेफिनेशन में नाम लिख दूंगा आप सबको, फिर बताऊंगा सॉफ्टवेयर का नाम कल। तो उसका मतलब उसको कहा ही जाता है कि वर्चुअल वर्चुअल कंप्यूटर है एक तरीके से, रिमोट डेस्कटॉप या वर्चुअल कंप्यूटर। तो अब अगर मैं एक और एग्जांपल दूं वर्चुअलाइजेशन का, जो मैं अभी यूज करा, मेरा एक क्लाइंट था। ठीक है, अब मेरे करियर के अंदर मेरा अभी क्लाइंट रहता, तो मैंने उसके ना डेवॉप्स के भी टास्क परफॉर्म करे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा हम आपको रिमोट डेस्कटॉप दे, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी इशू था। तो वो अब फिजिकली मेरे को नया लैपटॉप ना देने के बजाय उन्होंने कहा ये एक रिमोट डेस्कटॉप दे रहे हैं, तो आप हमारे क्लाइंट के लिए जितना भी वर्क करोगे ना, मतलब जो भी टास्क परफॉर्म करोगे हमारे क्लाइंट से रिलेटेड, वो सारे टास्क आप इस वाले सिस्टम पे ही करना है। तो पहले इस वाले सिस्टम पे करने का मतलब है कि आप एक रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर लॉग इन करो, और लॉग इन जब करोगे तो उधर जो भी टास्क करोगे, उससे होता क्या, उसका जो पूरा जो डेटा है ना, वो क्लाइंट के पास जाएगा कि हाँ ये रिमोट डेस्कटॉप को इन्होंने यूज करा और किस लिए यूज करा है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे हमारे रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर। तो वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है, और उनके लिए भी अच्छा है कि उनको ये उससे होता है कि आपका डेटा ब्रीच नहीं हो सकता। आप उस रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप अपने दूसरे लैपटॉप पे भी डेटा नहीं भेज सकते। वो अलाउड, वो डिपेंड करता है कैसे उन्होंने बनाया है रिमोट डेस्कटॉप को। मेरे वाले में अलाउड ही नहीं था। ईमेल्स भी भेजने के लिए वो कहता था कि ये जो ईमेल्स क्लाइंट की ईमेल पे एंड हो रही है, मतलब @xyz.com पे जो भी एंड होंगी, उन्हीं के पास ये आप ईमेल सेंड कर सकते हो, और किसी को ईमेल भी नहीं सेंड कर सकते। और फिर काफी सारी वेबसाइट भी रेस्ट्रिक्टेड थी, जैसे आपका चैट जीपीटी हो गई, ये रेस्ट्रिक्टेड था उस रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर। तो सिक्योरिटी पहुंचते ताकि डेटा ब्रीच ना हो इन सब चीजों के लिए, तो वो इस तरीके से वो वर्चुअल कंप्यूटर्स बना देते हैं। तो ये सारे पूरा कंसेप्ट आता है वर्चुअलाइजेशन के अंदर, ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे वर्क करता है। और अगर मैं सेल्स फोर्स के टर्म्स में इसको बोलूं, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे, कि कुछ नहीं, हमने एक काफी सारी कंपनीज एक ही सर्वर को यूज करेंगी। तो अब ये हो सकता है कई बार कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का डेटा ले ले, वो चीज ना हो, तो हम वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। इसका एक तरीके से एग्जाम्पल यही है, जैसे मैंने लास्ट लाइन में लिखा है, बहुत बड़े से घर में अलग अलग रूम प्रोवाइड कर रखे हैं हमने हर कंपनी। तो ये
एज एग्जाम्पल थोड़ा समझ आ गया कि ऑसिलेशन होती क्या है। हेलो। किसी का कोई क्वेश्चन? Hello. हेलो। या Hello, sir. या I have one doubt. Sir, virtualization means suppose machine in machine. Can we say it's virtualization? हाँ करेक्ट। Yeah. So this machine is in middle section machine. How to get power and how it work? Can you give? हाँ तो देखो वो पावर क्या है, वो पावर आपकी जो फॉर एग्जांपल एक मशीन है ए जो फिजिकली आपके पास है, और उसके अंदर आप दूसरी मशीन यूज कर रहे हो बी। ठीक है। हाँ तो जी. उसको जो पावर जो आप कह रहे हो ना, वो पावर मिलेगी मशीन ए के थ्रू। जो पावर से वही कह रहे हो ना कि वो चार्ज वगैरह कैसे होगा, ये सब चीजें एक सब कहना चाह रहे हो, करेक्ट। हाँ जी. हाँ तो वो चार्जिंग वगैरह जो है वो सब चीजें उसको मशीन ए के थ्रू मिलेगी, जो कि आप फिजिकली चार्ज कर रहे हो जिसको। ठीक है। Yes, sir. और कोई क्वेश्चन किसी का? और एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो ये सब टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, पर ये मत सोचना, अगर मतलब मैं है बोल सकता हूँ एज सेल्सफोर्स डेवलपर, ये सब टॉपिक्स आगे जाके प्लेसमेंट्स के टाइम, इंटरव्यूज के टाइम अगर आपको इनका बेसिक पता है ना, तो भी आप सिक्योर हो। मतलब आपको बेसिक इन द सेंस पता होना चाहिए वर्चुअलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसा एक अभी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया तो उन्होंने सिंपल से बोला मशीन ही मशीन। हाँ ये इतना अगर आपको पता है तो ठीक है, बाकी आपको फिर सेल्सफोर्स नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही आपको IaaS, PaaS और SAS, SaaS है ना, इन सब चीजों का मतलब पता होना चाहिए। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड क्या होते हैं, इन सब का बेसिक इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि क्या यूज है, क्यों होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका बेसिक रहता है। अगर ये सब आपको बेसिक अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो सेल्स फोर्स पे अपना करियर। ठीक है। तो अब किसको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को बता दीजिए। हेलो सर। या आपने वो फंक्शन एज अ सर्विस एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ वो मैंने बोला था कि अभी इसको इग्नोर कर दो, ये मैं आगे जाके ही आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके लिए ना आपको, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में अगर इसके लिए बोलूँ, आप फंक्शन सर्विस क्या होता है कि आपने कोई डेवलपर हायर कर लिया, अपना टास्क परफॉर्म, वर्चुअल डेवलपर हायर कर लो, वो आपका टास्क परफॉर्म कर दे। अब ये चीज आपकी यूज पता है बेसिकली कब आती है, जब हम एपेक्स ट्रिगर्स, एपेक्स क्लासेस लिखते हैं ना, उस टाइम पे फंक्शन एज ए सर्विस यूज में आता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ सिंपल एग्जांपल आपको मैं दूं, जैसे आपने अगर ऑनलाइन कभी देखा होगा
एक सेकंड, अगर मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, अगर हम ऑनलाइन एक चीज सर्च करते हैं, स्क्रीन नहीं विजुअल होगा, कोई नहीं, ऑनलाइन जब हम कुछ सर्च करते हैं ना, कि एक आपका कोई पीडीएफ है, पीडीएफ जो है अभी आपकी पासवर्ड सिक्योर्ड पीडीएफ है, ठीक है। अब आपको पासवर्ड सिक्योर्ड पीडीएफ से आपको उसका पासवर्ड रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर देते हैं कई बार कि रिमूव पासवर्ड फ्रॉम अ पीडीएफ, तो उसके लिए कोई वेबसाइट आती है, मैं नाम भूल रहा हूँ वेबसाइट का, स्मॉल पीडीएफ ऐसे कुछ वेबसाइट आती है वो। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर कहते हैं अपनी पीडीएफ अपलोड करो और पासवर्ड डालो, तो वो एक नई पीडीएफ जनरेट करती है विदाउट ए पासवर्ड, ठीक है। तो इसने क्या करा, वो जो एल्गोरिथम है उसको आपको रेंट पे दिया है इसने आपको, ठीक है ना, हमने उसका एल्गोरिथम यूज करा है और उससे आपने अपना टास्क आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये सब टास्क के टाइम पे, इस टाइम पे हम फंक्शनल सर्विस यूज करते हैं, पर ये चीजें मोस्टली हम सेल्स फोर्स के करियर के अंदर एपेक्स ट्रिगर्स और एपेक्स क्लासेस के अंदर यूज होता है, तो इसलिए मैं कह रहा था इसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँ। जब हम डेवलपमेंट में जाएंगे, जब हम एपेक्स क्लासेस और एपेक्स ट्रिगर्स लिखेंगे, तो मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसमें फंक्शनल सर्विस का क्या मतलब होता है, और बेसिक एग्जांपल यही है इसका, वैसे तो मैंने आपको बोला। ये समझ आ गया फंक्शनल सर्विस? और से कोई क्वेश्चन? Ritik, in virtualization, how the data security is managed? Is it provided inbuilt by Salesforce or the organizations who are opting for those virtualizations, so they need to make the provision for it? देखो, डिपेंड करता है, आप वर्चुअलाइजेशन ऐसे ही नहीं है कि वर्चुअलाइजेशन बस हम सेल्स फोर्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब वर्चुअलाइजेशन जो भी कंपनी, वर्चुअलाइजेशन ना आपको ऐसे कंसेप्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है ये आपका, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक का हमने नया सिस्टम बना लिया अपने सिस्टम के अंदर, तो जो वो सिस्टम बना रहे हैं ना, सिक्योरिटी की डेटा ब्रीच ना हो ये सब चीजें, वो तो आपको वो सिस्टम बनाने वाली कंपनी ही देगी। पर अब कि सेल्स फोर्स का डेटा ब्रीच ना हो, कि सेल्स फोर्स का जो डेटा है, वो डेटा एक कंपनी दूसरी कंपनी जाना चाहे, वो सिक्योरिटी पर्पसेस आपका इंश्योर करती है सेल्स फोर्स, कि एक कंपनी इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी का शेयर ना हो। वो ऐसे वर्चुअली, वो जो वर्चुअल कंसेप्ट है वो सेल्स फोर्स मैनेज करेगी। और उसके लिए आगे जाके आपको सिक्योरिटी मॉडल्स दिखेंगे कि जैसे रोल्स बनाते हैं हम उसको सिक्योर करने के लिए, प्रोफाइल्स बनाते हैं, परमिशन सेट्स बनाते हैं, अलग अलग चीजें हैं, गवर्नर लिमिट्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। ये सब चीजें मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम एडमिन में कर रहे होंगे वो। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ये सब चीजें इंश्योर करता है सेल्स फोर्स की एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी के साथ शेयर ना हो। पर अगर मैं अभी कुछ भी अगर मैं बोलूंगा ना, तो आप सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको पता नहीं कि कॉर्नर लिमिट्स क्या होती है, प्रोफाइल क्या होता है, रोल्स क्या होते हैं, काफी काफी लोगों को नहीं पता है यहाँ पे, है ना। जब तक मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं करता, तो मैं अभी इस चीज पे नहीं जा सकता कि वो कैसे मैनेज होती है, सिर्फ उसको कैसे मैनेज कर। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा। Yes, so to summarize as a whole, we can say that Salesforce provides the pre-built functionality for data security, but we as a client, the organizations who are opting for those clouds, so we need to make some securities from our side as well, right? That's what you're saying, हाँ, to करेक्ट। secure the क्यों? data. हाँ, क्योंकि जो हम वर्चुअल कंप्यूटर यूज करेंगे, उसके अंदर ये तो है नहीं बस हम सेल्स फोर्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर Correct. आपका अपना टीम्स भी रहेगा और भी डेटा रहेगा। तो ये अब सेल्स फोर्स होगा, सेल्स फोर्स का डेटा को बचाएगा ना, बाकी जो आपका डेटा सिक्योर आपको करना है, जो Right. आपका टीम्स की चैट है जो भी है, Yes. वो जो आपको डेटा सिक्योर करना है, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे सिक्योर रखना Yeah, so it is like that the basic read or write functionality we use, right, है। to हाँ, the data, which we applies to the data, like who can access, who can only view those data, and who can edit those data, right? Read and write हाँ, करेक्ट, functionality, हाँ, correct? करेक्ट, हाँ। Okay, okay. तो
और किसी को क्वेश्चन? क्योंकि मेरे देखो एक्चुअली आज का जितना मेरे को एक टॉपिक एक्सप्लेन करना था मेरे हो गए हैं। अब मोटिवेशन में डीप डाइव में कल ही करूंगा। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो बता दो। या फिर मैं सोच रहा हूँ अगर नहीं है किसी को क्वेश्चन तो मैं आपको ट्रेल हेड वेबसाइट का थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ट्रेल हेड वेबसाइट क्या है। हेलो। Yes, Yes, sir. Ritik, I can sense that as there is no doubt we can you can show us this the tour to how to operate the Staylet website and how to how to complete हाँ those tasks on the Trailhead website. We can I हाँ think we can go you can go ahead and make us aware of what are the things which needs to be done along with the training session. ठीक है। तो अगर मैं इधर जाता हूँ, ठीक है, ये गूगल मेरा विजिबल है ना यहाँ पे? यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट ही दिख रही है, बता दो एक बार बस। No, it's visible now, Ritik. हाँ, ठीक है। तो अगर तो मैंने ट्रेल हेड सर्च किया गूगल, ठीक है, ट्रेल हेड साइन अप लिख के सब। तो यहाँ पे आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी ट्रेल हेड की। तो इस पे क्या होता है, इसके थ्रू आप इन सब डोमेन्स की चीजें लर्न कर सकते हो। काफी सारे अदर रोल्स भी हैं सेल्स फोर्स के अंदर। सेल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सेल्स फॉर डेवलपर, सेल्स प्रोफेशनल, मार्केटर, आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट, तो सारे रोल्स दिखा देगा। अगर रोल्स क्लिक करता हूँ मैं सब दिखाता रहेगा। डिजाइनर, एनालिस्ट, सेल्स करियर, मार्केटिंग करियर, साइबर सिक्योरिटी, सर्विस करियर, तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप सब चीज लर्न कर सकते हो। अब जैसे हमें आर्किटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो इस पे आप जाओगे लर्न मोड। इधर से आप जब क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड के ऊपर, तो वो ये आपका पहला है कि सेल्स, इधर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सेल्स एडमिन का रोल क्या होता है, क्या क्या होता है। फिर इधर से वो आपको कह रहे हैं साइन अप के लिए। देखो अब मेरा अकाउंट बना हो तो मैं साइन अप नहीं करूंगा, तो इधर से आप साइन अप कर सकते हो उसके उसके ऊपर, ट्रेलहेड के ऊपर। ये मैं कहूंगा ये आज आप सब लोग ट्रेलहेड के ऊपर एटलीस्ट अपना साइन अप करके अकाउंट बना लेना। ठीक है, तो अब जब आप सेल्स ट्रेलहेड पे जब आप वो करते हो ना साइन अप, तो उससे क्या होता है आपको ना, इसकी लिमिट है शायद 10 या 15, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा। उतने ना आपको सेल्स फोर्स और आप क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स फोर्स और क्रिएट करने का क्या है बेनिफिट, तो आप सेल्स फोर्स और का अगर आपने क्रिएट कर ली तो आप उस आगे जाके जब हम सेल्स फोर्स वर्क करेंगे तो मैं आपको तो मैं कभी आपको बोलूंगा कि अब आप, जैसे मैंने आज आपको फ्लो एक्सप्लेन करा कि फ्लो कैसे बनाते हैं, फिर मैंने आपको कोई एक टास्क दिया उसी लेक्चर के बाद। ठीक है, अब सब लोग अपनी ऑर्ग में, मतलब सब लोग एक फ्लो बनाओ, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट, बीट एनीथिंग। तो अब उस कहाँ बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। तो वो जो हम प्लेटफॉर्म या कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना, तो वो आपको इस ट्रेलर के थ्रू आप फ्री में मिल जाते हैं आपको वो अकाउंट्स। ठीक है ना, उसमें 10 या 15 और बना सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेलर पे आप लॉग इन करके साइन अप कर लेना आज। और उसके बाद आपको आगे जाके जैसे जैसे हम वर्क करेंगे तो आप उन्हीं और उसके ऊपर वर्क करके आप मेरे को दिखा सकते हो हाँ हमने ये बनाया है, उसको फिर हम रन करके देख लेंगे कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। वो तो आगे की बात है। पर एक तो ये चीज होगी, इस पे साइन अप करने का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर मैं इधर से अपने अकाउंट पे लॉग इन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, अगर मैं ठीक है, अगर मैं इधर से अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ, जैसे इधर आपको, मैं आपको पॉइंट्स कह रहा था ना अभी थोड़ा टाइम पहले, कि कुछ को हमने आपके उस पर भी देखती हैं, पॉइंट्स भी चेक करते हैं आपके ट्रेल हेड पे कितने पॉइंट्स है। इधर जैसे दिखा रहे हैं मेरे 89,000 पॉइंट्स। तो ये एक तरीका होता है, जितने जितने आप मॉड्यूल्स क्लियर करते रहोगे उतने उतने आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, और आपको उस हिसाब से रैंक मिलती है। जैसे करंटली मेरी रैंक है रेंजर। ठीक है, अब क्या लिखा है नीचे कि अगर आप 95 और बैचेस क्लियर कर लोगे और 10,575 पॉइंट्स, ये दोनों चीजें कंप्लीट करोगे, तो आपकी रैंक इंक्रीज होकर डबल स्टार रेंजर बन। ये सब चीजें रहती हैं इसके अंदर। और फिर इधर से वो अपने आप सजेस्ट करता था कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, और ये सारे मेरे बैचेस दिखा देगा यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के अंदर। तो जब भी कोई कंपनी आपका करती है ना, तो ना वो आपके इस प्रोफाइल पे ही आती है, ट्रेलर की प्रोफाइल का लिंक मांगते हैं वो आपसे। अब ये शेयर कर दोगे, ठीक है, ये आपने ये शेयर करा, तो वो आपके इस पे जाके देख लेंगे कि हाँ ये हमारा है, हमने इतने इतने बैजेस, इसने, इस एम्प्लॉय ने ये सारे बैजेस कंप्लीट कर रखे हैं, तो उसको ये बैच क्लियर करा, तो उनको, इस एम्प्लॉय को मतलब वो आइडिया होगा कि डेटा एनालिटिक्स कैसे वर्क करती है, कॉमर्स क्लाउड का बेसिक्स पता है ना। तो उससे मतलब इसका बेनिफिट क्या है, उन्हें आइडिया हो जाता है कंपनीज को कि हाँ जिसको हम हायर करने जा रहे हैं उस एम्प्लॉय के स्किल्स क्या हैं, और उसको कितना नॉलेज है, किस चीज की कितनी नॉलेज है, और किस चीज पे ज्यादा वर्क किया है। ठीक है, और इधर ही आपके सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं, सेल्स फोर्स के ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस होते हैं अपने। तो अभी मैंने एक ही कर रखा है, मेरे को और करने हैं सर्टिफिकेशंस भी, पर हाँ, तो इधर ही आपको सर्टिफिकेशन भी दिख जाएंगे कंपनीज के। तो ये एक तरीके से आपका वर्चुअल रिज्यूम है सेल्स फोर्स के करियर के अंदर। ठीक है, तो ना हर एक कंपनी, जो भी कंपनी हायर करती है, मतलब 80 to 85% कंपनीज, तो जितनी मैंने जिनमें अप्लाई करा है, सबने मेरे से, मेरा एटलीस्ट ट्रेल हेड का तो लिंक मांगा ही मांगा, प्रोफाइल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सेल्स फोर्स में करियर बनाना है, और तो आपको ट्रेल हेड पे तो अकाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस चीज में वैसे? और ट्रेल हेड का एक और बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं, तो इसके ऊपर ना हर टाइप के टास्क आते हैं। एमसीक्यू टास्क भी आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड टास्क भी आएंगे, और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी आएंगी, जिसके लिए आपको खुद से पूरा कोड लिखना पड़ेगा। उन्होंने बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको दे देंगे और आपको पूरा कोड लिखना है। फिर आगे एक चीज आती है इसके अंदर ही, सुपर बैजेस। ठीक है ना, सुपर बैजेस में आपको कहूंगा, तो सुपर बैजेस हर चीज का आंसर आपको गूगल पे तो मिल ही जाएगा, ये आपको ही पता। ठीक है ना, हर चीज का लूप होल तो मिल ही जाता है। सुपर बैजेस आप गूगल पे देख के भी कर सकते हो, पर मैं ये सजेस्ट आपको करूंगा, प्लीज एटलीस्ट 1 से 2 अटेम्प्ट आप खुद से करने की देना, सुपर बैचेस को क्लियर करने के लिए। और जितना सुपर बैच क्लियर करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा आगे जाके। तो क्यों मैं कह रहा हूँ खुद से क्लियर करना, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करोगे, यहाँ तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे ट्रेल हेड पे, पर जब वो उसी सुपर बैच से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो 1 सेकंड में बता देता है इंटरव्यूअर भी, इन्होंने गूगल से करके सोल्यूशन निकाला है इसका, या इन्होंने खुद से करा है। चाहे वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा सुपर बैच से रिलेटेड, पर आप वो भी नहीं बता पाओगे। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, उसके अंदर आप गूगल से आंसर ना निकाल के आप खुद से ट्राई करना सुपर बैजेस क्लियर करने के। सुपर बैजेस कुछ नहीं, 10 बैजेस को मिक्स करके एक सुपर बैच बनता है। और उसके बाद उसके अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट मिलती है ना, वो रियल टाइम रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा
सिमिलर रहती है, तो वो इसलिए कि रियल टाइम में भी उसी टाइप के आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, वही रिक्वायरमेंट्स आपके पास आएंगी रियल टाइम में, इसलिए इसको बेसिस पे काफी फोकस करने की। तो, अब आज के पूरे लेक्चर में किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ। जैसे मैं सुपरवाइज कहता हूँ, ये मैंने इससे 2 सुपरवाइजर्स कंप्लीट कर रखे हैं, ये होता है। अगर मैं इस पे जाता हूँ, देखो जैसे दिखा रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 जब हम बैच कंप्लीट करेंगे उसके बेसिस पे आपको दिखाएगा, और इधर रिक्वायरमेंट इधर नीचे लिखी होती है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट, यूज केस पूरा एक्सप्लेन करें कि क्या यूज केस है, कंपनी की इंफॉर्मेशन रहेगी इसके अंदर, सब चीज रहेगी। फिर नीचे उसके टास्क लिखे होते हैं, जैसे इससे मेरे को कितने पॉइंट्स मिले थे आप देख रहे हो, 13,000 पॉइंट्स। अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इधर इसलिए वो टास्क लिखे नहीं आ रहे कि क्या क्या टास्क थे। इधर ना मतलब ऐसे टास्क होते हैं कि एक टास्क करोगे तो इतने पॉइंट्स, दूसरा कंप्लीट करोगे तो इतने पॉइंट्स, ऐसे कर करके पॉइंट्स बढ़ते रहे। कोई क्वेश्चन अब किसी को भी? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। हेलो सर। या सर ये पीपीटी कब तक मिलेगी हमें? मैं वो बात करके आपको बता दूंगा, ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। Bye, Ritik. Thank you. कोई क्वेश्चन है किसी को भी? ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। Thanks, Ritik. Bye. बाय।